गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल करियर कौशल्यान। आज हम लोग रिक्रूटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। वो रिक्रूटमेंट है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। ये एक बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट है जहाँ पे अराउंड 309 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा, जिसके बारे में डिटेल्स में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए, ये एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ओपनिंग आया है। पोस्ट का नाम है आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल। जस्ट अ मोमेंट। हाँ, जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल। टोटल कैंडिडेट्स जो है जो वो लेंगे, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो है आपका 309। उसमें अनरिजर्व्ड का है 125, ईडब्ल्यूएस है 30, ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर का है 72, एससी 55, एसटी 27। ओके, और फिर पीडब्ल्यूबीडी जो फिजिकली डिसेबल्ड है उनका एक कैटेगरी है, जिसमें कैटेगरी सी में आपको 7 वैकेंसीज है। यहाँ पे कुछ और स्पेसिफिकेशंस है जो आप पढ़ लीजिएगा, जैसे कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या रहेंगी। एसिड attack victims subject to medical standards required for ATC license and without major restriction in muscle movement। ये सारा जो भी PWBT कैटेगरी में आते हैं वो थोड़ा इस सेक्शन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। रुकिए, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। इसको मैं हाईलाइट करती हूँ पिंक से। ओके, वेट जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, हो नहीं रहा है, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। फुल टाइम रेगुलर बैचलर्स डिग्री ऑफ 3 years इन साइंस बीएससी विथ, देखिए इसको कैटेगरिकली मेंशन किया गया है कि विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए, और फुल टाइम रेगुलर बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन ब्रैकेट physics and mathematics should be subjects in any one of the semester's curriculum। इस चीज को आप कोट एंड कोट इस चीज को पूरा देख लीजिए। कैटेगरिकली वो लोग फिजिक्स एंड मैथ्स को, मैथमेटिक्स को मेंशन कर रहे हैं। फिर आगे, द कैंडिडेट शैल हैव मिनिमम प्रोफिशिएंसी इन बोथ स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश ऑफ द लेवल ऑफ 10+2 स्टैंडर्ड ब्रैकेट द कैंडिडेट शैल हैव पास्ड इंग्लिश as one of the subject in 10th or 12th standard. Note, degree should be A, from a recognized /deemed university or from an apex institution, that is IIT /IIMs /XLRI /TISS etc. recognized by Government of India. And number B, percentage of marks, pass marks or equivalent for bachelor's degree. Number 2, candidates having BE/BTech/BSc engineering degree are allowed to apply where essential qualification is prescribed as bachelor's degree in engineering. Departmental candidates possessing recognized degrees as per the required minimum qualification obtained through part-time correspondence distance education mode shall be eligible to apply. एज लिमिट है आपका, मैक्सिमम आपका 27 years होना चाहिए एज ऑन 24th of April 2025। दैट मीन्स आपका आज 16th हो गया, 8 days है। रिलैक्सेशन इन एज है आपका, अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाय 5 years फॉर SC/ST and 3 years for OBC NCL candidates। Vacancies reserved for OBC category are meant for candidates belonging to non-creamy layer as per the guidelines of Government of India on the subject. Upper age limit is relaxable by 10 years for PWBD candidates where post is identified suitable for relevant category of disability, supported by the certificate of disability issued on or before 24th of May by the competent authority. Ex-servicemen and commissioned officers, including emergency commissioned officers or short service commissioned officers who have rendered
at least 5 years military services and have been released. Number 1, on completion of assignment, including those whose assignment is due to be completed within 1 year, otherwise then by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency, or on account of physical disability attributable to military service or on invalidment, shall be allowed maximum relaxation of 5 years in the upper age limit. Upper age limit is relaxable by maximum 10 years for candidates who are in regular service of AAI and have completed their probation on initial appointment. The date of birth as recorded in the matriculation secondary examination certificates will only be accepted. तो आप समझ लीजिए, द डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन आपका जो मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट में जो डेट मेंशन किया है उसी को डेट उसी के बेसिस पे आपका एज कैलकुलेशन होगा. नो सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन डेट ऑफ बर्थ विल बी एंटरटेन्ड. अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन हो चुका है आपका 25th ऑफ अप्रैल को होगा. क्लोजिंग डेट होगा आपका 24th ऑफ मई 2025. ओके, सो सॉरी, तो मैंने एक चीज गलत बोला होगा यहाँ पे. आपका ये जो है रुकिए, एज जो है आपका कैलकुलेशन जो है वो 27 years एज ऑन 24th ऑफ मई, मतलब आपका 1 month 8 days बाकी है. सॉरी उसके लिए. अच्छा, ओपनिंग डेट अभी भी ऑनलाइन ओपन नहीं हुई है, वो 25th ऑफ अप्रैल को ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन होगी और क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी आपकी 24th ऑफ मई 2025. टेंटेटिव डेट आपको अनाउंस किया जाएगा. रेम्यूनरेशन देख लीजिए जो कि बहुत ही शानदार है. ये देखने के बाद तो आप एग्जाम के लिए अगर एलिजिबल है तो आप मतलब करेंगे ही. अच्छा, ये रहा आपका मोटा मोटा सब कुछ डिटेल्स मैंने आपको बता दिया है. अब बस 25th ऑफ अप्रैल को जब ये ओपनिंग आएगी आप तुरंत इसमें अप्लाई कर लीजिएगा, कोई डिले मत कीजिएगा. मेरे इस चैनल करियर कौशल्यान से आप एंगेज होइए ताकि आप मैं कोई भी करियर बेस्ड साइकोमेट्रिक टेस्ट बेस्ड जो होता है करियर काउंसलिंग, उसके बारे में कुछ डिस्कशन करूंगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा. फिर आपको कोई भी जॉब जो मतलब जो कोई भी जॉब जो एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से वैकेंसी निकल रही है उसके बारे में मैं यहाँ पे दूंगी तो आपको उसका भी नोटिफिकेशन मिलेगा. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अपने ट्रांजिशन पीरियड में है, 12th में है, 10th में है, उनको कौन सा स्ट्रीम सिलेक्ट करना चाहिए पोस्ट पासिंग देयर एग्जाम, पोस्ट पासिंग ऑफ देयर एग्जाम, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगी. उसके बारे में मैं इन डेप्थ डिस्कस करूंगी कि कितने सारे स्ट्रीम्स होते हैं, कि कौन से जैसे इंजीनियरिंग में कितने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, आर्ट्स में कितने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, लॉ में कितने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, ह्यूमैनिटीज में कितने होते हैं. बहुत सारा इन डेप्थ डिस्कशन होगा इस चैनल में. तो मेरे चैनल को आप जितना जल्दी हो सके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले वीडियोस बनाते रहने में. ठीक है, थैंक यू. आप इसमें अप्लाई कर लीजिएगा, मिस मत कीजिएगा. थैंक यू सो मच.